Good morning, students. I hope you all enjoyed your last week. Navratri time is going on, so I really hope that you all are enjoying Navratri days. Happy Navratri to you all. So, my little ones, today I'm your GK teacher and we'll start a new chapter named Inspiring India. I want to tell you that before that we had two chapters. Please note down this. Give me a second. Inspiring India से पहले हमारी बुक में दो chapters हैं. Alright. So they are not a part of your course. We are not doing those two chapters. Those who are watching this video, please listen this very carefully, that Magic of Music and chapter 10 Timeless Treasure, these two are not a part of your course. Last time we did the chapter As Free as a Bird, chapter 8, and now we are doing chapter 11, Inspiring India. Okay, chapter 9 and 10 are not a part of your course. So, Inspiring India, about India. I want to tell you something, not new exactly, but must be new for you all, my little ones. The name of our country, the actual, the official, the full name of our country is not India. It is Republic of India. Bharat Ganrajya is the actual official name of India. Republic of India. So we will talk about India today. Our country, हमारा भारत, उसकी diversity, variety, states, languages, costumes, religion, food, so much actually. You know, one thing I would like to share today with you all, my little ones. Let's just change the slide, and this is a simple globe, India on earth. I wanted to show you. So I was telling you one thing. I have visited to many states. Okay, I've been to Jaipur, Rajasthan. I have been to Punjab. I have been to South India, Tamil Nadu, Karnataka, been to Jammu Kashmir. मैं बहुत मैंने इंडिया काफ़ी स्टेट्स में इंडिया की घूमी हुई हूँ, असम. Alright, so I really want to tell you one thing which I noticed. हम इस देश के किसी शहर, किसी स्टेट में चले जाएं, हर जगह, हर स्टेट की अपनी एक खुशबू है. I must tell you this. If we touch पंजाब, अगर हम पंजाब को छूते हैं, अगर हम पंजाब स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ का सरसों का साग, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोग, सब कुछ अलग है. हवा में ही उस ग्रीनरी, उस सॉइल की खुशबू है. If we go to Rajasthan, the place, the city, Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, the state is altogether different. Everywhere you will see different people wearing different clothes, different variety of food. My God, a different language. If we go to Haryana, absolutely different state. Loving people, adorable people. The food. Yeah. So that's how I love about my country. That's what I love about my country. So, India, we are talking about this country, and I want to tell you a few more interesting things. That the name India derives from the river Indus. Indus. और ये दुनिया की second largest populated country है. Population, सबसे ज़्यादा आबादी, second largest. First is China, second is India. Okay. हज़ारों भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं. हर किस्म का खाना यहाँ मिलता है. If we talk about food,
सो आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के कि क्या यूनिक है इस कंट्री में. व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडिया? द कल्चर, द डाइवर्सिटी, the monuments, the landmark, the Taj Mahal in Agra. India is a food lover's paradise. Nothing beats Indian food. You know that? Curries, pakoras, chicken curries, momos, samosas, jalebis, kebabs, paneer, vegetarian, non-vegetarian, different state का different food. दाल बाटी चूरमा from Rajasthan, लिट्टी चोखा from Bihar, yes, सरसों का साग from Punjab and Haryana, idli sambar from South India, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. ओ माई गॉड, देयर इज़ सो मच. मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी पर ये ख़त्म ही नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, इंस्पायरिंग इंडिया. ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द जोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट आवर कंट्री. दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 states and 9 union territories. Second most populated country, I have just told you. First is China, second is India, and it is located in the continent Asia, continent of Asia. एशिया के साउथ एशिया के, जहाँ आपने अभी वर्ल्ड में मैप में इंडिया का फ़ोटो देखा था, तो उस जहाँ पे ये प्लेस्ड है उसको बोलते हैं एशिया. इंडिया इज़ इन एशिया. ओके, कल्चर ऑफ इंडिया. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कल्चर, सो टुडे वी विल I'll take you to some heritage sites. एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स में हैं. Alright, for example, हज़रत बल in जम्मू एंड कश्मीर. हज़रत बल बच्चों is a दरगाह, is a shrine. It's in जम्मू एंड कश्मीर. So हज़रत बल एक ऐसी श्राइन है जहाँ मुस्लिम्स कम्युनिटी वहाँ जाकर अपने खुदा की इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं. हज़रत मीन्स मोहम्मद एंड बल कश्मीरी लैंग्वेज में जगह को बोला जाता है, प्लेस को. सो मोहम्मद की इबादत करने की जगह हज़रत बल. इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ अ फेमस श्राइन. आई होप आई एम क्लियर. Now this आमेर फोर्ट इन राजस्थान. आप सबको अगर मैं बताऊं, राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स. इतने किले हैं वहाँ पर और इतने खूबसूरत किले हैं. आपने मूवी पद्मावत में चित्तौड़गढ़ देखा होगा, देखा था, जहाँ रानी पद्मावत रहती थी. सो इस तरह के किले राजस्थान में बहुत तादाद में पाए जाते हैं. आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ देम. दिस इज़ आमेर फोर्ट एंड यू कैन एंजॉय दिस क्लिप फॉर सम टाइम. राजस्थान एक अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां आपको इंडिया की कुछ सबसे बेहतरीन इमारतें और महल देखने को मिलेंगे और उनकी बारीकियां आपको काफी चौंका सकती हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द वेरी फेमस आमेर फोर्ट ऑफ जयपुर. आमेर फोर्ट जयपुर का एक काफी आइकॉनिक महल है. एक पहाड़ी के ऊपर बना ये फोर्ट करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. द मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट इज अ sheer blend of Rajput and Mughal styles, making it even way more unique and beautiful. The Amer Fort holds a very interesting history, क्योंकि आमेर फोर्ट का डिजाइन किसी एक राजा की देन नहीं है. महाराजा मानसिंह I, who was chief in Akbar's army, started its construction in 1592 और उनके बाद आने वाले ऑलमोस्ट हर रूलर ने अपने खास डिजाइन से महल के आर्किटेक्चर में 4 चांद लगा दिए, मेकिंग इट वे मोर इम्प्रेसिव. यहाँ के लार्ज कॉम्प्लेक्सेस
जिनके अंदर शानदार रॉयल पैलेसेस, रैम्पल्स, कॉबल्ड पाथ्स एंड मल्टीपल गेट्स हैं। वॉक इन महाराजा स्टाइल थ्रू द सूरज पोल, ऑल्सो नोन एज सन गेट, एंड आपको देखने को मिलेगा द एक्सपेंसिव जालेब चौक। In olden days, the White Courtyard was used as a passage for armies to display their war winnings, while the royal women viewed them from behind the windows. The next is the very fabulous Ganesh Old Gate. All right, children, this is quite a long clip of I think 4 minutes. So you can see this clip later. I wanted to tell you about Amer Fort and it's very much clear in this clip. आप आराम से बाद में देख सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। द फेमस आमेर फोर्ट इन राजस्थान। नाउ द नेक्स्ट क्लिप, फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश। सो फतेहपुर सीकरी इज़ अ सिटी इन इंडिया। कहाँ पर है ये? आगरा के पास। इट इज़ अ रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग जो अकबर ने बनाई थी। इट इज़ अ सिंपल, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, लाल पत्थर से बना है ये और यहाँ पाया जाता है बुलंद दरवाज़ा जो बहुत फेमस है और बहुत दूर से लोग इसे देखने आते हैं। सो फतेहपुर सीकरी इज़ अगेन अ सिटी इन इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, नालंदा इन बिहार। नालंदा, now this is something very interesting I want to tell you. Why Nalanda is famous? Why? So Nalanda is famous all over the world for the ancient international monastic university. मोनास्ट्री और पुरानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ नालंदा में थी बहुत सालों से। और ये कब बनी? इन 5th सेंचुरी। जो ग्रामर, वेदास, लॉजिक, मेडिसिन, इन सब की पढ़ाइयों को यहाँ पर पढ़ा जाता था। ओके, और आज की डेट में नालंदा एक पॉपुलर हेरिटेज साइट है। बट पहले यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी जहाँ पे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और लैंग्वेज, ग्रामर, वेदास, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब पढ़ाई करते थे। ऑलराइट, सो इट्स अ सेंटर, इट्स अ सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ लर्निंग। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर, दिस पिक्चर इज सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा, दिस इज इन मध्य प्रदेश। ओके, सो नाउ अब ये किस लिए फेमस है भाई? सो बच्चों, सांची स्तूपा इज़ अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स जो अपने फेमस ग्रेट स्तूपा, स्तूपा मतलब जो ये स्टोन देख रहे हैं आप बड़ा सा, ऑन अ हिल टॉप एट सांची टाउन, उसकी वजह से ये फेमस है। ओके, सो सांची स्तूपा, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो हम इसको बोलते हैं सांची स्तूपा। आपको मालूम है ये क्यों बनाया गया था? एक्चुअली बुद्धिस्ट जो बुद्धा, गौतम बुद्धा के स्तूपास थे, ये यूजुअली बनाए जाते थे टू एक्चुअली जहाँ पे उनकी हिस्टोरिक बुद्धा की चीज़ें और ये सब हम संभाल के रख सकें और जहाँ हम बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर सकें। ओके, सो इसीलिए ये स्तूपा बनाए जाते थे। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर। एंड इट्स इन मध्य प्रदेश, it's in Madhya Pradesh. So this is Sanchi Stupa. You can see it's actually very beautifully made, very beautifully made. Now this clip, इतना कुछ है हिंदुस्तान में, अभी तो हमने 1% भी नहीं देखा बच्चों। एलोरा केव्स, एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, very very famous,
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये केव्स बनी हुई हैं। एंड एक्चुअली ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बनी है, जो महाराष्ट्र में है। ओके, अब हम ये आपको बताएंगे कि ये फेमस क्यों है। Wait, why is it not moving? Yes, these are Ellora caves. Ellora is also actually a world famous for the largest single monolithic excavation in the world, the Great Kailasa. Basically, I would like to tell you कि जो एलोरा केव्स हैं ये हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब के टेम्पल्स इनमें बने हुए हैं। उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके आप देख रहे हैं जो इसमें छोटे छोटे स्टोन्स के ऊपर कुछ कुछ बना हुआ है, तो उन्हीं की इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास ये केव्स हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। एलोरा केव्स, इट्स अ UNESCO World Heritage Site. UNESCO World Heritage Site. All right. Now this is very interesting. I have been there and it's really beautiful. Basilica of Bom Jesus in Goa. It's a church. It's a church. बहुत 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 पुराना चर्च है. If I tell you, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1594। हम 2000 में हैं, 1594। जस्ट इमेजिन, आप में से बहुत बच्चे 2000 में ही पैदा हुए हैं। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स 1990 ऐसा कुछ है उनका डेट ऑफ बर्थ। सो ये जो पर्टिकुलर चर्च है बच्चों, ये 1594 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस इन गोवा। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये क्यों फेमस है, जो आप इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो और आप बता रहे हो कि ये बहुत सुंदर चर्च है, ह्यूज, बहुत हाइट पर है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फेमस क्यों है। बच्चों यहाँ पर लेट मी जस्ट, हाउ डू आई टेल यू, मुझे थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसको आपको बताना है। ओके, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये बहुत बड़े, जैसे सेंट होते हैं और पोप होते हैं, वैसे ही सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये जीसस, गॉड जीसस को बहुत मानते थे। ठीक है, और उनको यहाँ पर बरी किया गया। बरी मतलब उनको यहाँ दफनाया गया था, और आज भी उनकी ग्रेव यहाँ पर है। उनकी जो बॉडी है वो आज भी एक ग्लास बॉक्स में यहाँ पर है। अगर आप इस चर्च में जाएंगे तो यू कैन ईज़िली सी, आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी को सेव किया हुआ है। आई एम सॉरी, ग्रेव नहीं है, उन्हें दफनाया नहीं गया था, उनकी बॉडी यहाँ सुरक्षित रखी गई थी, और इतने सालों बाद आज भी वो एज़ इट इज़ है, उसको सेव किया गया है, कुछ मेडिसिन्स, कुछ लेप और कुछ लगाकर। और इतना एनर्जी, इतना पावर है उसमें अभी भी कि ना वो गली है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं इसके, नहीं तो आपको सुनकर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी रखा गया है, जिसकी वजह से ये चर्च फेमस है। इस चर्च की खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये चर्च बनाया गया है। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर एक सेंट थे ऑफ मिशनरीज़, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे एक्चुअली। सो उनको, जब उनकी डेथ हुई थी, उनको यहाँ लाया गया था, उनकी इच्छा थी यहाँ रहने की, तो उनको यहाँ पर रखा गया। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू ऑल। सो दिस इज़ द चर्च फ्रॉम इनसाइड, एंड आप ग्लास बॉक्स में देखेंगे, ही इज़ ऑलरेडी देयर। यस, ओके, हम्पी।
Hampi. Hampi in Karnataka. Hampi in Karnataka. So I would like to tell you about Hampi. Ancient village. Ancient village. Hampi is an ancient village and it is in the South Indian state of Karnataka. कर्नाटका स्टेट में ये है हम्पी. ये देखिए कितना सुंदर है, ये देख रहे हैं आप. सो हम्पी इज़ फेमस फॉर इट्स ruins belonging to the erstwhile medieval Hindu kingdom of Vijayanagar. So basically Hampi, give me a minute, let me just have a sip of water, children. Okay, thank you. So I'm here again. So now Hampi, we were discussing Hampi in Karnataka. So basically Hampi is famous for its बहुत टूरिस्ट उसको देखने आते हैं for its architecture, for its brilliancy and it attracts travelers a lot. Hampi बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है, उसकी workmanship आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है and it's in Karnataka. So this is your first exercise, children. Match the following the way we do. All the states or cities and their famous architecture, places, monuments, landmarks. You need to match this. I have done this for you. Please fill this exercise and I will see you tomorrow. Time to say goodbye, my students, my friends, my little ones. Enjoy your day. Please fill that exercise and we'll see you tomorrow. कल हम फिर इंडिया की बहुत खूबसूरत और सुंदर जगह देखेंगे और अभी ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है जो आपको पूरे भारत की सैर कराएगा. सो बच्चों, हैव अ नाइस डे. विल सी यू टुमारो. हैप्पी नवरात्रीज टू यू ऑल. आई लव यू. टेक केयर.